बल्लेबाजी करके गए, मैन ऑफ द मैच भी रहे थे, 50 कंप्लीट किया। पहली बॉल रोहित, सीधे पैड पे जाके लगी है, अपील तो की है लेकिन अंपायर ने अपील को खारिज कर दिया है। ओहो, रिव्यू की मांग वहां पर कप्तान के द्वारा तीसरे एम्पायर के लिए रेफरल दे दिया है। ग्राउंड एम्पायर ने तीसरे एम्पायर को चुनौती दी है कि आप इस बॉल को ठीक से ट्रैक कीजिए कि एक्चुअल इस बॉल पर हुआ क्या था। आइए चलते हैं तीसरे एम्पायर के पास। जाना पड़ेगा वहां बल्लेबाज को। अच्छा डीआरएस वहां पर,
बिहार के कैप्टन के द्वारा ओरिजिनल डिसीजन जो आया था ग्राउंड एम्पायर के द्वारा वो नॉट आउट था। उसके बाद फटाफट से वो डीआरएस का इस्तेमाल किया। और देखिए जब आपके पास टेक्नोलॉजी होती है तो फिर आप उसका इस्तेमाल कीजिए। एक घातक बल्लेबाज को जाना पड़ेगा। रोहित इस मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ मायूसी लेकर ही वापस जाएंगे। पिछले मैच के 50 बॉय 0 के स्कोर पर जा रहे हैं। ये बड़ा विकेट, बड़ा झटका इस समय टीम उत्तराखंड के लिए। ओवर की समाप्ति, सफल ओवर की समाप्ति हुई है। संदीप के ओवर में ये एक महत्वपूर्ण विकेट आया। टीम के घातक बल्लेबाज, टीम के वाइस कैप्टन रोहित को अपना शिकार बनाया। एक के बाद 6, 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए रोहित और मोहित की जोड़ी जब जब हमने देखी कुछ अच्छा देखने को मिला, लेकिन जैसे जैसे ही इन दोनों को अलग अलग किया गया ना तो फिर कुछ बड़ा झटका यहां पर लगाए टीम उत्तराखंड को। शुभम चौधरी 4 बॉल 5 रन और मोहित तंवर अब आए बल्लेबाजी करने के लिए। पहली बॉल डॉट और उसके बाद ओवर की समाप्ति हुई। इस समय नॉन स्ट्राइक एंड पर मोहित तंवर। भरत शर्मा गेंदबाजी करने के लिए वापस आ गए और वापस आ गए हमारे साथी कमेंटेटर कमेंट्री बॉक्स में। अमन, स्वागत है अमन आपका कमेंट्री बॉक्स में। Thank you so much, Monu. A very good start for Team Bihar. They got the wicket in the very first over. And Sandy again delivering for what he is known for. I think he is habitual of taking wicket in the first over. This time he smashed that ball, but good fielding. Deflection. Because of that deflection, the ball didn't go to the boundary line for 4. Otherwise, I mean, if that deflection would not have come, this could have been the first boundary. Bharat Sharma. The ball was a little bit short this time. And Shubham Chaudhary, he threshed that ball. Onto the stumps, chance of a run out. But quickly dragged his bat inside the popping crease. Team Uttarakhand, why they are in so hurry? They should take time. They have sufficient time. They won the toss and they decided to bat first. This time, Mohit Tanwar has gone down the ground and it is the first maximum of the match. Sensational stroke. Came down the track and then goes down the ground. The ball covered a long distance. Maybe one of the longest sixes of this T10 Cricket Association tournament. Mohit Tanwar used the power of his arms. Bharat Sharma will be under pressure after seeing that ball going this much far. Once again, this time towards the deep mid-wicket region, there is no fielder. And 4 runs will be added in the scorecard of Team Uttarakhand. Mohit Tanwar, he is on a roll.
He's ripping things apart. Short of length ball and pulled it away towards deep mid wicket region. 10 in the last 2 balls. Bharat Sharma. Now which length he's going for. Mohit Tanwar. This time outside edge and bat fielding. Luck favors the brave. Mohit Tanwar got 14 in last 3. Bharat Sharma, he will not be happy. Outside edge, the ball was going straight into the hands of short third man, but there was a big gap between both of the legs and ball went through that. 21 for 1 after 2. Team Uttarakhand. Ravi Kumar, first ball is straight in. Short fine leg fielder. He said thank you very much to Shubham Chaudhary because the fielder at short fine leg reason didn't even move a single inch. Just look at this. It's straight into the hands of short fine leg. Ravi Kumar is starting his spell with the wicket. सिर्फ दिशा दिखाना चाहते थे लेकिन वहां पर शॉर्ट फाइन लेग का फील्डर खोज लिया. शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग, उसके बीच में वो फील्डर की तैनाती की गई थी. जाना पड़ेगा एक सलामी बल्लेबाज को 6 रन के स्कोर पर. एक बाउंड्री की सहायता से 6 रन बनाए, एक चौका शामिल. अर्जुन प्रताप सिंह के द्वारा वो कैच कंप्लीट किया गया और रवि कुमार के खाते में यह विकेट. ये दोनों बड़े अच्छे मित्र और इनके बीच में वो कोऑर्डिनेशन देखने को हमेशा मिलता है. 2.1 ओवर के बाद 21 2 विकेट के नुकसान पर टीम उत्तराखंड. Ravi Kumar, what a start for him. Once again, one more batter tried to play the ball towards the fine leg region. And who knows, it could have been the second wicket also. And in the same manner. But this time the umpire said that it is a wide ball. The 1 run will be added in the scorecard of Team Uttarakhand. And now the score is 2 for 2. Second ball. Is it going to be a dot delivery? No. There is no fielder at the cover point region in the 30-yard circle. There is a fielder outside the 30-yard circle and he will collect the ball. And meanwhile, both the batters will complete a single. It's 23 for 2 after 2.2 overs. Team Uttarakhand. Ravi Kumar. What a start for him. Great start for him.
The ball is going towards the boundary line. The player is chasing it and the player will win the race. Single and then double. So in last 2 balls we have seen 3 runs coming. Last ball. Oh, great delivery. Didn't get anything about that ball. Sagar Singh. Just look at this ball. Completely missed the line. Great ball. With this, the 3rd over has been concluded. After 3, Team Uttarakhand 26 for 2. It has gone too much in the air and it has gone towards our cameraman. And I would like to say to the cameraman, please focus karo. What a shot. Actually, this was not the shot I was talking about. I was talking about the 6 which we saw on the first ball of this over. Mohit Tanwar, he moved on to 21 with this massive 6. Once again, he was trying to play a slog sweep and beating everyone. The ball has gone towards the boundary line, but what a fielding effort! Great effort. I think we have some footballer present here. Just look at this, how the fielder stopped the ball from short fine leg, reached towards the boundary line. And just on the boundary line, oh my goodness, what a save! What a save! This was one of the best saves we have seen in this tournament so far. रन्स बचाई और अंतिम समय तक हार नहीं मानी। और देखिए, जब आप अंतिम समय तक हार नहीं मानते हैं तो फिर आपको कुछ अच्छा मिलता है। सिर्फ 2 रन वहां पर दौड़कर पूरे किए थे बल्लेबाजों ने, 2 रन बचा लिए। सागर सिंह 3 बॉल 3 रन, मोहित तनवर 10 बॉल 22 रन। आज मोहित को थोड़ा सा पीछे खिलाया गया है। और बात करें शुभम की और सागर की, तो इन्हें थोड़ा सा प्रमोशन दिया गया है बल्लेबाजी में। सागर को हमने आगे बल्लेबाजी करते हुए ज्यादा देखा नहीं है, दूसरे डाउन पर ही उन्हें बुला लिया गया था। अब यहां पर कुछ अच्छा करना पड़ेगा क्योंकि आपके 2 विस्फोटक बल्लेबाज पवेलियन वापस जा चुके हैं। बैकफुट का इस्तेमाल किया, स्ट्रोक लगाया, लेकिन वहां एक्स्ट्रा कवर का फील्डर मौजूद। और यहां पर आने वाले नए बल्लेबाज तैयारी कर रहे हैं और तैयार बैठे भी हैं। सोच समझकर अब मैदान में आना होगा और बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, रन्स भी बनाने पड़ेंगे। और वो छोटे छोटे क्रिकेटर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं स्टैंड में और चीयर अप कर रहे हैं। और जैसे कोई बाउंड्री पड़ती है ना, तो उसके बाद एक अलग लेवल की खुशी देखने को मिलती है। उम्मीद करते हैं कि इस ओवर में बाउंड्री आ जाए और उन फैंस को चीयर अप करने का मौका भी मिल जाए। 1 रन चतुराई के साथ दौड़कर पूरा किया। ओवर थ्रो के चलते थोड़े से चांसेस तो बने थे, लेकिन दोनों बल्लेबाज तैयार नहीं थे दूसरा रन लेने के लिए। छत्तीस पर 2 इस समय 4 ओवर के बाद। सलमान खान के पहले ओवर से आए सिर्फ 8 रन। रवि कुमार, ये अपनी टीम के क्वालिटी बॉलर, सिर्फ दिशा दिखाई है, लेकिन पीछे फील्डर को भी खोज लिया है। शॉर्ट फाइन लेग का फील्डर मौजूद। शॉर्ट फाइन लेग के बाद एक डीप फाइन लेग का फील्डर भी तैनात किया हुआ है।
शायद उन्हें पता है कि मोहित तंवर और सागर सिंह उस एरिया में अच्छे खासे स्ट्रोक लगाते हैं और लगा सकते हैं, तो पहले से ही गेंदबाज ने वहां पर फील्डर को लेके तैनात किया हुआ है। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, सारे फील्डर्स तैनात 30 गज के दायरे के बाहर। ओ, ये क्या करना चाह रहे थे, पूरी तरह से बीट हुए और साथ में उनके कीपर भी कंफ्यूज हो गए। 2 की कॉल, 2 को पूरा भी कर लेंगे। 22 का इशारा एम्पायर के द्वारा। 40 पर 2 इस समय 4.5 ओवर के बाद रवि कुमार गेंदबाजी कर रहे हैं। थोड़ी सी बॉल पीछे रखी, धीमी गति की बॉल, स्क्वायर लेग की दिशा में खेला, डीप स्क्वायर का फील्डर मौजूद। 1 रन सागर के बल्ले से निकलता हुआ सिंगल के साथ सागर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 5 के बाद 41, 2 विकेट के नुकसान पर टीम उत्तराखंड। मोहित तंवर 14 में 23 अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। और आने वाले बल्लेबाज अभी भी मौजूद, जिनके विकेट कीपर हैं मंथन त्यागी, वो भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन अभी वो बल्लेबाजी करने का मौका मिला नहीं है ज़्यादा मैचेस में। अगर इस मैच में ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर बल्लेबाजी करते हुए नज़र आ सकते हैं। और देखिए एक और घातक बल्लेबाज राकेश शर्मा, इस नाम का भौकाल आपने कई बार सुना होगा। पिछले मैच में भी ज़्यादा कुछ मैच में जान बची हुई थी नहीं, फिर भी उन्होंने आके छक्के चौकों में ही डील की थी, अपोनेंट टीम को ध्वस्त किया और मैच को अपने पक्ष में रखा था। उनका आना भी अभी बाकी। तो 2-3 ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज अभी बचे हुए हैं और साथ में टीम के कैप्टन चिराग त्यागी गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। फिर से वही स्वीप लगाने का प्रयास, फाइनल की दिशा में बॉल गई, 2 रन तोड़कर कंप्लीट किए मोहित तंवर ने। सलमान खान इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली 2 बॉल्स पर 3 रन ड्रॉप किए हैं। और कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। अगर इन टीम में से अगर कोई टीम एक हारेगी तो पॉइंट टेबल पर थोड़ी सी उथल पुथल और देखने को मिलेगी। Although Mohit Tanwar has got so many boundaries, but right now what we are seeing is Team Uttarakhand, they are batting with a run rate of less than 9, and once again Mohit Tanwar, he has played that ball straight into the dugout of his team. Mohit Tanwar actually gave a chance to his players that please catch this ball. That was really quick. That was really quick. 6 on this ball. And with this 6, 50 comes up for Team Uttarakhand. Once again, Mohit Tanwar. Has he got the distance or just the height? Only the height. Sandeep was there. And between Sandeep and Bablu Singh, there is some conversation going on that I was coming under the ball, But finally, Sandeep completed the catch, and with this, the full stop has been put on the batting of Mohit Tanwar. बैक टू बैक बाउंड्री की तलाश में थे यहाँ पर मोहित। मिड विकेट की दिशा में पहले बाउंड्री बटोर ली थी, अपने डगआउट में बॉल को भेजा, लेकिन इसके बाद लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलना चाहते थे। बल्ले के निचले हिस्से पर बॉल लगी, ऊंचाई तो बहुत लेकिन दूरी उतनी नहीं कि विकेट माफी चाहेंगे बाउंड्री निकाल सकें, लेकिन वहां पर संदीप ने अच्छा कैच कंप्लीट किया। साथ ही फील्डर से वहां पर वो कन्वर्सेशन करते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फाइनली कैच आपने कंप्लीट कर लिया है। कैच ड्रॉप हो जाने के बाद अक्सर देखा जाता है
31 रन की एक महत्वपूर्ण पारी को विराम दिया, जाना पड़ा बल्लेबाज को वापस। 50 पर 3 इस समय 5.4 ओवर के बाद सलमान खान दूसरा ओवर और पहली विकेट अपने नाम की। अच्छी वापसी, पिछली बॉल पर बाउंड्री जरूर आई थी लेकिन उसके बाद विकेट निकाली है और उसी बल्लेबाज की विकेट निकाली है। यही होती है सबसे बड़ी संतुष्टि किसी गेंदबाज के लिए। लेकिन राकेश शर्मा, नाम तो आपने सुना ही होगा और किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं ये आपने देखा भी होगा। ये आते ही ज्यादा वक्त लेते नहीं है। ऊंचे लंबे कद के बल्लेबाज और ऊंचे और लंबे छक्के लगाने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। कुछ इस प्रकार से देखिए, पहली बॉल कोई स्टैंड एंड डिलीवर, वो किसी फील्डर ने कोई प्रयास नहीं किया था क्योंकि बॉल को हवाई यात्रा पर भेज दिया और कितना इजीली ये स्ट्रोक लगाया। ये देखिए, तीर की तरह सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर से। वो कैमरामैन कैमरे में बॉल को कैप्चर करने में असमर्थ दिखाई दिए। जी हां, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि इतना सीधा कि तीर भी शर्मा जाए। देखिए, प्रोडक्शन टीम लगातार कमेंट्री बॉक्स के पास रहती है तो उन्हें भी अंदाजा हो जाता है कि किस प्रकार से स्ट्रोक लगाया है। कवर्स की दिशा में डीप कवर का फील्डर वहां मौजूद, 1 रन को 2 रन में तब्दील कर दिया। अच्छा लगता है देखकर जब कोई बल्लेबाज छक्के चौकों में डील कर रहा है और उसके बाद 1 रन 2 रन दौड़कर कंप्लीट कर रहे हैं। उन्हें पता है कि यहां पर महत्व है हर एक रन का। सफल ओवर की समाप्ति इस डबल के साथ 6 के बाद 58, 3 विकेट के नुकसान पर टीम उत्तराखंड। After Mohit Tanwar's wicket, Rakesh Sharma came and he started his innings with a bang. And he is actually known for that. 6 overs, 58 for 3. Before some time, my co-commentator Monu talked about the production team and really commendable work has been done by our production team, Set Sports TV. This is the 4th day of this tournament and we are seeing the same dedication of our production team and also the management members. They have also done a commendable job from day and night, from day to night. They worked really hard to make this event a success. Sandy, or you can say Sandeep, he was present at the long on reason and he was quite shocked after seeing the bounce of the ball. Rakesh Sharma, once again, I think the ball is going to be launched. Be ready, all the boundary riders. Oh, this time Rakesh Sharma defended the ball, give the respect to the ball. And you will not see him doing this job so frequently. Right arm leg break bowler Ankur Saraswat, it is his first over. And Team Bihar, they have a couple of spinners who can bowl really good. This time Ankur Saraswat tried to do something extra and wicketkeeper didn't even stretch his hand towards the ball. And that's what Ankur Saraswat is saying, that why didn't you try to grab that ball? Wicketkeeper said, it was too away from me, bro. Sagar Singh is now on the strike. Ankur Saraswat. Shot of length on the pads, definitely. It's out. Clearly in front of his stumps, got in front of his stumps. Ankur Saraswat got the first wicket. And Sagar Singh didn't even think of the DRS. It was a plumb LBW. Shot of length, was trying to play towards fine leg reason. No connection between bat and ball. And if it would not have hit the pad, then it was going to the stumps for sure. कोई मौका नहीं था वहां पर सागर के पास अपनी विकेट बचाने के लिए, सीधे मिडिल स्टंप्स के सामने पाए गए और आवश्यकता नहीं थी इस प्रकार से स्ट्रोक लगाने की। समझना चाहिए कि आपके लिए यह महत्वपूर्ण मैच है। इस समय आपको यह मैच जीतना है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। सागर सिंह की पारी को विराम दिया है अंकुर सारस्वत ने 8 रन के स्कोर पर और इस समय उत्तराखंड का खेमा थोड़ा सा डिमोटिवेट होता हुआ नजर आया।
पिछले कुछ मुकाबलों में अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन इस मुकाबले में स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है टीम। पहले रोहित ने अपना विकेट गंवाया, उसके बाद लगातार 3 बल्लेबाज अपना विकेट गंवाकर वापस जा चुके हैं। प्रवीण कुमार नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आ गए। एकमात्र उम्मीद इस समय टीम उत्तराखंड के लिए राकेश शर्मा, और दूसरी उम्मीद अगर कोई है तो वो मंथन त्यागी। अंकुर सारस्वत 3 बॉल 3 रन और साथ में एक सफलता भी। प्रवीण कुमार को भी ना वो छक्के चौकों में डील करनी पड़ेगी, रडार वाली बॉल्स को भेजना पड़ेगा सीमा पार। अच्छी गेंद खूबसूरत अंदाज में डिलीवर किया अंकुर ने। अंकुर सारस्वत के पिछले मैचेस उठाकर देख लीजिए, वहां पर उनकी जो इकोनॉमी है ना वो थोड़ी सी ज्यादा आपको दिखाई देगी, लेकिन इस मुकाबले में अच्छी वापसी, कमाल की डिलीवरी। That was a straight one. Praveen Kumar tried to play for the spin, but the ball went straight into the hands of wicketkeeper. This time overpaced and along the ground. It will go to the hands of Bablu Singh, who is present at the long on reason. Now Rakesh Sharma, will he go for the big shot or not? Because in this over we haven't seen any boundary coming. If you want to go for a big hit, then he would have to make a good connection. That's sure. Oh, Ankur Saraswat pulled out from his run-up, and maybe because he struggled a little bit with his landing leg. Ankur Saraswat, the first over of him is such a beauty. Gave only 4 runs and took 1 wicket, and one more bad delivery. Short fine leg would have to run towards the ball, and once again brilliant save. Saved few runs for his team, and I think 3 runs will come on this ball, but it would have been 5 if that ball would have reached to the boundary line. So now we will be witnessing the last ball of the 7th over. Ankur Saraswat, he is ready. Oh, Rakesh Sharma, he doesn't move his feet too much because he believes on his power. And once again we saw the same thing. Didn't use his feet. Just the front foot we saw, which moved a little bit. The back foot was on its place. A great delivery to finish the over. Ankur Saraswat gave 7 in his first and took 1 wicket. 7 gone, 65 for 4. अच्छी गेंदबाजी अंकुर सारस्वत के द्वारा, सिर्फ 7 रन खर्च किए इस ओवर से और साथ में 1 विकेट भी अपने नाम की। 10 ओवर का ये इनिंग रहता है जिसमें से 7 ओवर हो चुके हैं। 65 बनाई 4 विकेट के नुकसान पर। टीम उत्तराखंड इस समय फंस गई है, पूरी तरह से फंस गई है, क्योंकि बिहार के पास अच्छी क्वालिटी के बल्लेबाज हैं। जब वो बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, और जल्दी मैच को फिनिश करने की तरफ भी देख रहे होंगे। 65 पर 4 है इस समय टीम उत्तराखंड को अगर ये मैच बचाना है तो फिर बाकी के 3 ओवर्स में बहुत अच्छा करने की आवश्यकता। देखिए यहां से 100 रन के आसपास तो पहुंच जाएगी टीम, लेकिन 100 रन से बात बनेगी नहीं बनेगी, कितने ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे ये आप अपने गेंदबाजों से पूछ लीजिए, क्योंकि आज एक अलग सवाल पूछने वाले हैं बिहार के बल्लेबाज। राकेश शर्मा के ऊपर उम्मीद लगी हुई है। 4 बॉल में 8 रन बना लिए हैं, जिसमें एक मैक्सिमम शामिल, जो कि पहली ही बॉल पर शायद उन्होंने लगाया था। अगर ये खड़े रहे अंतिम बॉल तक तो फिर समीकरण आपको कुछ और ही देखने को मिलेगा। बल्ला बहुत तेजी के साथ, अगर इनके हाथ से बैट अगर छूट भी जाता है ना तो मुझे लगता है कि बाउंड्री पार कर जाएगा, क्योंकि इनका बैट फ्लो कुछ इस प्रकार से है। और आप इनको ना अगर बारीकी से देख रहे होंगे तो महेंद्र सिंह धोनी की याद आएगी आपको, जिस प्रकार से इनका खड़े होने का तरीका है, जिस प्रकार से स्टांस लेते हैं, जिस प्रकार से इनका बैट फ्लो है, वो सर्वगुण संपन्न आपको महेंद्र सिंह धोनी की तरह आपको नजर आएंगे। ये लीजिए
वही कदमों का इस्तेमाल, वही बैट फ्लो, और ये नहीं तो अगली, अगली नहीं तो उससे अगली, ये बॉल जरूर कनेक्ट करेंगे अपने बल्ले पर और मैक्सिमम के लिए भी भेज देंगे। बार बार मिस कर रहे हैं। बैट फ्लो इतना ज्यादा शानदार है कि अगर किनारा भी लगा ना तो थर्ड मैन पर चौका चला जाएगा। बहुत जोर से बल्ला घुमा रहे हैं। जितने भी दर्शक यूट्यूब पर इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं ना, वो अब इंतजार कर रहे हैं कि कब गेंद राकेश शर्मा के बैट से कनेक्ट होगी। एक बार फिर से बढ़िया गेंद, वाइड की मांग, अंपायर ने कहा कि ये फेयर बॉल है। ओह, वाइड दे दी गई है। ऐसा लगा जैसे शायद पहले मना कर दिया हो, लेकिन वहां पर जब कैमरा अंपायर की तरफ मोड़ा गया तो ऐसा लगा जैसे शायद एसआर के मोड ऑन कर लिया उन्होंने अपना। 1 रन वाइड का, 1 रन दौड़कर पूरा किया गया। अंपायर बॉल के बाद थोड़ा सा अपनी बाईं तरफ चले थे, इस वजह से मुझे ऐसा लगा जैसे शायद फेयर डिलीवरी दी है उन्होंने। प्रवीण कुमार के लिए ये गेंद हाफ वॉली, और प्रवीण कुमार ने पिछले मैचेस की सारी भड़ास निकाली है इस गेंद पर। ज्यादा अच्छी तरीके से गेंदें कनेक्ट हुई नहीं है उनके बल्ले से इस टूर्नामेंट में, इस बार हुई है तो आप देख सकते हैं कहां गई है, सैर पर। बिल्कुल रडार में गेंदबाजी, जैसा उनका बैट फ्लो और उसी रडार में जब बॉल आ जाएगी तो फिर मैक्सिमम लेकर ही वापस आएगी। और देखिए जो कार्य राकेश शर्मा करना चाह रहे थे वो कार्य प्रवीण कुमार ने किया है। साथी बल्लेबाज का कर्तव्य यही बनता है कि अगर साथी बल्लेबाज नहीं कर पा रहा है तो फिर उस कार्य को हम करेंगे। खूबसूरत अंदाज में ये स्ट्रोक लगाया और 4 रन बटोरे, माफी चाहेंगे 6 रन बटोरे। 4 की तो कोई गुंजाइश ही नहीं वहां पर। वापसी की भरत शर्मा ने लेंथ को थोड़ा सा पीछे रखा और इस बार रडार में नहीं की थी बॉल। अगर आप बॉल को पीछे खींच के रखेंगे तो फिर बल्लेबाज का बैट फ्लो थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। हवा में गेंद, कैच को कंप्लीट कर लिया गया है। बड़ी मछली का शिकार, भरत शर्मा के खाते में सफलता। दूसरे ओवर की अंतिम बॉल, और अंतिम बॉल पर पारी को अंतिम विराम दिया है प्रवीण कुमार की, सिर्फ 8 रन के स्कोर पर। आउटसाइड एज, बल्ला जल्दी घूम गया। कवर पॉइंट का वहां पर फील्डर मौजूद, और कोई गलती नहीं की कैच को कंप्लीट करने में। सफल ओवर की समाप्ति हुई है सफलता के साथ। 8 के बाद 74, 5 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज विजय बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आ गए, लेकिन अभी भी मंथन त्यागी का आना बाकी। मंथन त्यागी को रोका गया अभी भी बल्लेबाजी के लिए। अगर मंथन आते मैदान में तो फिर मंथन जरूर करते। राकेश शर्मा स्ट्राइक एंड पर मौजूद होंगे। अगर स्पिन गेंदबाजी इनके विरुद्ध की जाती है तो यकीन मानिए कुछ बड़ा स्ट्रोक जरूर लगाएंगे। लीजिए वो स्पिन गेंदबाजी ही आई है इनके सामने। अंकुर सारस्वत, पिछला ओवर बेहतरीन, 7 रन और 1 विकेट। लेकिन यहां पर तो ऐसा लगा कि थोड़ा सा दबाव है अंकुर सारस्वत के ऊपर। ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर बॉल की, कीपर भी पकड़ने में असमर्थ दिखाई दिए। 3 रन आए इस बॉल पर, 2 रन दौड़कर कंप्लीट किए और 1 रन वाइड डिलीवरी के चलते। बहुत ज्यादा बाहर। विकेट कीपर कहते हुए कि भाई इतनी बाहर करोगे तो मैं कैसे पकड़ूंगा, लेकिन इस पूरे मुकाबले में गेंदबाजों ने शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी की अच्छी तरीके से खबर ली है, अच्छी तरीके से परीक्षा ली है। बहुत ही ज्यादा निरंतर अंतराल पर हमें वो खिलाड़ी दौड़ता हुआ नजर आया बाउंड्री लाइन की तरफ। अंकुर सारस्वत, शुरुआत अच्छी नहीं मिली इस ओवर में। वाइड के साथ साथ रन्स भी दौड़े बल्लेबाजों ने। राकेश शर्मा एक बार फिर से तैयार हैं। अंकुर सारस्वत, वो रडार में गेंदबाजी तो की है लेकिन इस बार कनेक्शन नहीं हुआ, वरना ये पसंदीदा बॉल है इस बल्लेबाज की। चतुराई के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं आज अंकुर सारस्वत। मिस टाइम हुआ, पूरी तरह से मिस टाइम।
रन दौड़कर पूरा किया। नॉन स्ट्राइक एंड पर पहुंच गए राकेश विजय, जो कि अपनी पहली बॉल का सामना कर रहे हैं। उन्होंने स्ट्रोक लगाया मिड विकेट की दिशा में, वहां से 1 रन दौड़कर पूरा किया और फिर से स्ट्राइक एंड पर आ गए राकेश। अंकुर सारस्वत के सर पर थोड़ा सा खतरा तो जरूर रहेगा इस ओवर में। चलिए इस बार पावर का इस्तेमाल, लेकिन ऊंचाई तो है, दूरी नहीं, लेकिन इतनी भी दूरी नहीं है कि फील्डर को खोज ले। लॉन्ग ऑफ का फील्डर गया तो था लेकिन पहुंच नहीं पाया। एक और सिंगल इस ओवर से। विजय बरूट फुल टॉस आमंत्रित किया और इस आमंत्रण को स्वीकार भी किया है। फुल टॉस बॉल करेंगे तो फिर बल्लेबाज बॉल को तो सैर सपाटे के लिए भेज ही देंगे मैक्सिमम। आसान सा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की दिशा में, बटोर लिए पूरे 6 रन। और काफी समय से राकेश शर्मा ट्राई कर रहे हैं मैक्सिमम के लिए, लेकिन वो मैक्सिमम देखने को मिला नहीं है। साथी बल्लेबाजों ने आसानी के साथ वहां मैक्सिमम लगा लिए। कदमों का इस्तेमाल किया इस बार, कदमों का इस्तेमाल किया इस बार और साइड स्क्रीन के पास खेल दिया स्ट्रोक। और जिस स्ट्रोक की तलाश थी राकेश शर्मा को, वो तलाश यहां पर खत्म हुई है। देखिए एक हाथ उनका अलग हो गया था बल्ले से, फिर भी इस बॉल को भेज दिया मैक्सिमम के लिए। इनके बाजुओं में इतनी ताकत है कि ये मिस टाइम को भी ना मैक्सिमम के लिए भेज सकते हैं। शर्मा जी का लड़का कमाल है ये। पूरी पावर नहीं लगा पाई इस स्ट्रोक में, वो बल्ले से एक हाथ का कनेक्शन टूट गया था। 9 के बाद 93, 5 विकेट के नुकसान पर अब अच्छे खासे और सम्मानजनक स्कोर पर पहुंचने वाली है टीम उत्तराखंड, क्योंकि यहां से सिर्फ 7 रन चाहिए ट्रिपल डिजिट में प्रवेश करने के लिए। ट्रिपल डिजिट में जाने के बाद थोड़ा सा कंफर्टेबल फील जरूर करेगी। अच्छी खबर यह कि राकेश शर्मा अभी भी मौजूद हैं, जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं, लेकिन ये तेज गति के साथ गेंदबाजी इस समय, तेज गति के साथ गेंदबाजी इस समय। और कभी कभी कहते हैं ना कि आप अपने ही जाल में फंस जाते हैं, और इस समय वही देखने को मिला। ये गति इन्हीं के लिए थोड़ी सी हानिकारक साबित तो होती हुई नजर आई है। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और उसके बाद स्पीड के साथ बॉल सीमा रेखा के बाहर गई फाइन लेग की दिशा में। रफ्तार पर बल्लेबाज का प्रहार, वैसे कन्विंसिंग शॉट नहीं था क्योंकि इनसाइड एज के बाद गेंद फाइन लेग की तरफ गई है। संदीप अच्छी गति से गेंदबाजी करते हैं। विजय भी वैसे तैयार है उसी गति के लिए। इस बार थोड़ी सी छोटी गेंद और उसके साथ साथ थोड़ी सी स्लो भी रही है, और ऐसा लग रहा है कि ये गेंद भी बाउंड्री लाइन तक पहुंच जाएगी। बैक टू बैक 2 गेंदों में 2 चौके, और इसी के साथ टीम उत्तराखंड के 100 रन भी पूरे। विजय बरूत उनके पल्ले से आए हैं आखिरी ओवर की पहली 2 गेंदों में 2 बढ़िया शॉट्स, 4 रन मिले। देखिए रिजल्ट अच्छा होता है तो हम बढ़िया शॉट ही कहेंगे, डजंट मैटर एज लगा हो कुछ भी हो। 108 इस समय में प्रोजेक्टेड स्कोर नजर आ रहा है। इससे पहले आज के दिन में जो उत्तराखंड ने मुकाबला खेला था, वहां पर टीम दिल्ली ने 99 रनों का लक्ष्य दिया था टीम उत्तराखंड को, और टीम उत्तराखंड ने 8 ओवर्स में ही वो मैच जीत लिया था। आई थिंक 8.4 में जीता था। 8 गेंदों पहले इस मुकाबले को अपने नाम किया था उत्तराखंड ने। तीसरी गेंद इस बार कनेक्शन कितना बेहतर, शायद बिल्कुल भी नहीं। दायरे के अंदर खड़े हुए खिलाड़ी के द्वारा पकड़े जाएंगे और विजय को जाना पड़ेगा वापस।
वैसे आज फील्डिंग जो की है ना विजय बरूत ने पहले मुकाबले में, वो बहुत कमाल की थी। एक सेव करते हुए नजर आए थे बाउंड्री लाइन पर और वहां अपनी टीम के लिए पूरे 6 बचाए थे। पूरे 6 तो नहीं, क्योंकि वहां 1 रन तो दौड़कर पूरा कर ही लिया था। 5 रन बचाए थे अपनी टीम के लिए। संदीप, इस मर्तबा उन्होंने अपनी रफ्तार में किया गिरफ्तार एक बल्लेबाज को। बैट का हैंडल ग्लव्स में घूमा और गेंद सिर्फ ऊपर जाती हुई नजर आई और उसके बाद सीधे शकील के हाथों में। इस बार बढ़िया कनेक्शन आते ही पहली गेंद को डिस्पैच कर दिया है मैक्सिमम के लिए तुषार। देखिए डगआउट से ही होके आए हैं तैयार और पहली गेंद पर किया है वार और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। फुल टॉस। क्या वहां पर इलीगल बॉल है? ये इलीगल बॉल है या नहीं है, लेकिन इस पर 4 आएंगे। तो कैप में खेला उस गेंद को तुषार सिंह ने महत्वपूर्ण 10 रन बनाते हुए और साथ ही साथ टीवी अंपायर की तरफ भी जाते हुए। तो टीवी अंपायर अब हमें वो बताएंगे कि ये नो बॉल है या नहीं है। टीम उत्तराखंड की तरफ से ओवरऑल देखा जाए तो फिर सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में इनका नाम आपको जरूर नजर आएगा। तकरीबन हर मुकाबले में इन्होंने विकेट चटकाए, गेम चेंजिंग ओवर भी करते हुए नजर आए। क्लोज एनकाउंटर मुकाबलों में, डेथ ओवर्स में, अंडर प्रेशर गेंदबाजी के साथ में विकेट चटकाई और टीम को जीत भी दिलाई। उत्तराखंड की टीम आज अगर किसी पोजीशन पर मौजूद है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ सैनी का भी रहेगा। दिलीप तोमर आते ही करारा प्रहार, स्ट्रेट हिट लगाई, उठाकर खेला साइड स्क्रीन के पास। 4 रन बटोरे, दूसरी बाउंड्री इस ओवर की। पहले 4, फिर विकेट और फिर एक और बाउंड्री। दिलीप तोमर पहली बॉल पर बाउंड्री। कमाल का कॉन्फिडेंस आएगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा इस स्ट्रोक को लगाने के बाद। बबलू जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद है, उन्हें इंतजार है अपनी पहली बॉल का और 111 रन की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। 57 बॉल्स इनके पास भी बची हुई हैं। विशाल सैनी बेहतरीन गेंदबाज, बट दिलीप तोमर यहां पर कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। वो काउंटर अटैक करने का प्रयास कर रहे हैं। आते ही उन्होंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री में डील करना चाह रहे हैं इस समय। पहली बॉल को तो सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 4 रन के लिए, लेकिन अगली बॉल पर बीट हुए, कदमों का इस्तेमाल भी किया था वहां पर। तो थोड़ा सा परिवर्तन किया था लेंथ में गेंदबाज ने। When first boundary came, then on the follow-up delivery we saw that wicket falling, but then the second boundary came and on the follow-up delivery we saw batsman getting beat. This time on the pads, Vishal K. Saini with his trademark slower, and a single will come and the strike had been rotated. The captain of team Bihar, Bablu, he has come to open today, and I think this is for the first time when we are seeing him coming as an opener. 9 for 1 after 0.5 balls, or you can say overs, because 5 balls have been bowled, and this is the last ball of the first over. Team Bihar, they have to chase a big target, so they need consistency. Shot of length, clipped it away towards fine leg. Chirag Tyagi is present there, and the last ball will be going for a single. So Team Bihar, they have entered in double figure score.
10 for 1 after 1. अच्छा ओवर रहा विशाल का, 9 रन जरूर आए इस ओवर से। ओवरऑल देखा जाए तो 10 रन आए, एक एक्स्ट्रा के तौर पर भी आया, बट एक विकेट आया इस ओवर से, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रन चेस करने के लिए टीम मैदान में आई और उसका पहला विकेट पहले ओवर से चला जाए तो यकीन मानिए वो थोड़ी सी फंस गई है उस समय, क्योंकि टारगेट 119 का है। 60 बॉल आपके पास होती हैं, जिसमें से 6 बॉल निकल चुकी हैं और आपने 10 रन बनाए, एक विकेट गवा दिया है। और क्वालिटी गेंदबाजी है टीम उत्तराखंड के पास, चाहे हम मुकुल त्यागी की बात करें, सैनी की बात करें, या फिर टीम के कैप्टन चिराग त्यागी की बात करें। एक से बढ़कर एक गेंदबाज इनके पास मौजूद हैं जो कभी भी गेम को पलट सकते हैं। वो 1 या 2 ओवर ऐसा आएगा उत्तराखंड की तरफ से कि वहां बिहार की टीम फंस सकती है। लेकिन आपको बता देते हैं बिहार के पास ऐसे पावर हिटर्स भी हैं जो खड़े खड़े मैच को फिनिश भी कर सकते हैं। स्लोअर डिलीवरी, शॉर्ट पिच बॉल, बबलू ने वहां सिर्फ और सिर्फ सम्मान दिया, खेलने का प्रयास नहीं किया था। अगर खेलने के लिए जाते तो शायद स्ट्रोक भी लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले सम्मान देना ही उचित समझा। समझ रहे हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय मुकुल त्यागी। पैड लाइन पर बॉल, पैड लाइन पर बॉल, लेग बाई का इशारा एम्पायर के द्वारा 1 रन दौड़कर पूरा किया। स्ट्रोक तो लगाना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में, बट कनेक्शन उतना बेहतर हुआ नहीं। 11 पर 1 इस समय 1.2 ओवर के बाद 52 बॉल में चाहिए 108 रन इस मैच को जीतने के लिए। और इस कहानी में ट्विस्ट तो आएगा, ये एक तरफा मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा तो मुझे भी लगता है। This time Dilip Tomar, he stepped out, but we are seeing from the first inning that the ball is not bouncing that much, and because of which the batters are facing problems. We have not seen any thriller today. Maybe we are ending this day with a thriller. Dilip Tomar once again. Oh, down the leg side, down the leg side. The umpire said it is a fair ball. Dilip Tomar, he is shocked. He is asking for the wide, but umpire said it is a fair ball. Mukul Tyagi, he has not conceded any run from the bat in the first 4 balls. Team Bihar, they need 108 in 50. Once again, and I think this time there was an inside edge. And after every dot ball, we are seeing that the children present in this ground are shouting and cheering for Team Uttarakhand. Last ball, 1-1 for 1. Just 1 run from this over, and that too came as leg byes. Now that's a big hit. That's a big hit, and the batter will get the maximum. In the first 5 balls, we saw only 1 run coming. And in the last ball, Dilip Tomar, he got the 6. Second over has been completed, and after the culmination of second over, Team Bihar 17 for 1. मुकुल त्यागी का ओवर अच्छा रहा था। पहली 5 बॉल उठाकर देखेंगे तो वहां पर आपको सिर्फ 1 रन नजर आएगा, वो भी एक्स्ट्रास के तौर पर। लेकिन अंतिम बॉल पर वहां मैक्सिमम के लिए खेल दिया स्ट्रोक दिलीप तोमर ने। ओवरऑल देखा जाए तो 7 रन आए इस ओवर से, 17 पर 1 इस समय 2 ओवर के बाद। और टीम के कैप्टन चिराग त्यागी अपना ओवर लेकर आ गए। उन्हें भी पता है कि इस समय वो गेंदबाजों का बोलबाला चल रहा है और यही समय है दबाव डालने के लिए, क्योंकि 2 ओवर में 17 बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। आने वाले ओवर्स में वो बल्लेबाज तेज गति के साथ रन बनाने की तरफ जरूर देखेंगे। और लालच भरी बॉल चिराग त्यागी के द्वारा आप इस ओवर में जरूर देखेंगे। और फील्डिंग को भी ना वो धीरे धीरे फैला दिया गया है। स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, एक्स्ट्रा डीप कवर। 4 फील्डर्स को बाउंड्री पर कुछ इस प्रकार से रखा है, और अगर 5वें फील्डर पे नजर डालेंगे तो वो आपको फाइन लेग की दिशा में नजर आएगा। लेकिन यहां पर एक बड़ा गैप, मिड विकेट पर कोई फील्डर तैनात नहीं था और उसका ही फायदा उठा लिया वहां बल्लेबाज ने। स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन पर फील्डर था, जो एक बीच में गैप था, उसी गैप से निकाल दी बॉल बबलू के बल्ले से बाउंड्री। और यही होती है चालाकी हर एक बल्लेबाज की, जहां आपको गैप मिले वहां से स्ट्रोक लगाइए, रन्स बटोरिए। स्वागत किया है कैप्टन चिराग त्यागी का इस ओवर में बाउंड्री के साथ। And see who has welcomed the captain of Team Bihar. So it was captain versus captain going on till the first 2 balls.
बबलू ने पिछली बॉल पर 4 रन लगाए, अगली बॉल पर सिंगल, छोर बदला, नॉन स्ट्राइक एंड पर आ गए और दिलीप तोमर को स्ट्राइक एंड पर लेकर आए। घातक बल्लेबाज दिलीप। फिर से वही स्क्वायर लेग की दिशा में 2 की कॉल, लेकिन मना किया क्योंकि वहां पर सागर मौजूद। सागर एक अच्छे फील्डर हैं, उनके विरुद्ध आप ज्यादा रन नहीं ले सकते अगर उनके हाथ में बॉल है तो। 23 पर 1 इस समय। चिराग त्यागी पहली बॉल 4, उसके बाद सिंगल, फिर से सिंगल। 6 रन अभी तक इनके ओवर से, 3 बॉल बची हुई हैं। वो कुछ फ्लैटेड डिलीवरी भी आपको देखने को मिलेंगी। ये अच्छी गेंद, कट लगाया, लेकिन अच्छी फील्डिंग देखने को नहीं मिली है। रोहित जा तो रहे हैं पीछे, लेकिन जब तक बॉल को पकड़ के थ्रो करेंगे तब तक तो 2 रन कंप्लीट कर लिए। अच्छी रनिंग देखने को मिली बबलू और दिलीप तोमर के द्वारा। चलिए, वो 2 रन तो वहां पे लिए थे, लेकिन अंपायर का वहां पर सिग्नल हासिल हुआ है। जल्दबाजी की है, शॉर्ट रन का इशारा अंपायर के द्वारा। सिर्फ 1 रन काउंट किया जाएगा। रडार में गेंदबाजी, लॉन्ग ऑन की दिशा में 4 रन। फील्डर पीछे थे तो सही, लेकिन थोड़े से दूर, क्योंकि वहां से मिड विकेट को भी वो कवर करने का सोच रहे हैं। अब आप ऐसी जगह पर लगाएंगे जहां से मिड विकेट और लॉन्ग ऑन दोनों को बचाना है, तो मेरे हिसाब से तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। वो दोनों तरफ आप बाउंड्री मिस करते हुए नजर आएंगे, और वही देखा हमने। अंतिम बॉल पर भी बाउंड्री आई। कैप्टन चिराग त्यागी के पहले ओवर से आई सिर्फ 12 रन। 3 के बाद 29, 1 विकेट के नुकसान पर टीम बिहार। और इस समय तकरीबन 13 रन प्रति ओवर की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए, और इस समय मेंटेन किया है तकरीबन 9.5 रन प्रति ओवर। 42 में चाहिए 90। वो कुछ बड़े ओवर्स की आवश्यकता है इस समय मैच को जीतने के लिए। अगर बड़े ओवर्स नहीं आएंगे तो फिर रिक्वायर्ड रन रेट आपका 15 के आसपास पहुंच जाएगा, और वो ओवर दूर नहीं है जहां पर 15 रन प्रति ओवर भी देखेंगे। तो इस समय बबलू और दिलीप को कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, बड़े बड़े स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे, हर ओवर को टारगेट करना पड़ेगा। मुकुल त्यागी तकरीबन 5 बॉल अच्छी की थी, पिछले ओवर की अंतिम बॉल पर बाउंड्री आई थी, और इस बार तो पहली बॉल पर ही उनका स्वागत किया बाउंड्री के साथ। गली की दिशा में खेला स्ट्रोक, 4 रन बटोरे। बबलू एक अलग रोल अदा करते हुए इस समय टीम के कैप्टन भी हैं इस समय, तो कप्तानी पारी खेलनी भी चाहिए इन्हें, और जिम्मेदारी लेकर चलना भी चाहिए। स्वागत किया मुकुल त्यागी का। और देखिए, मुकुल त्यागी ने पिछली 2 बॉल पर 10 रन ड्रॉप किए। पिछली बॉल पर 4 आए, और पिछले ओवर की लास्ट बॉल पर 6। इस बार तो ऊंचाई, सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई। नीचे फील्डर मोहित ने कोई गलती नहीं की है, कैच कंप्लीट किया है। एक सलामी बल्लेबाज बबलू, जो कि घातक साबित हो सकते थे टीम के लिए, उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया। 12 रन के स्कोर पर मुकुल त्यागी के खाते में सफलता। स्वागत 4 के साथ किया है, लेकिन उसके बाद विकेट भी निकाला है उन्होंने। और अब इस समय फंस गई है बिहार की टीम, क्योंकि 33 पर गवा दिया अपना दूसरा विकेट 3.2 ओवर के बाद। और फैंस यहां पर काफी ज्यादा उत्सुक नजर आते हुए, क्योंकि होम ग्राउंड टीम इस समय बिल्कुल रेड आउट फॉर्म में आने लगी है। टीम उत्तराखंड मेजबानी कर रही है सीनियर T10 चैंपियनशिप की, और कुछ जूनियर्स हमारे साथ मौजूद है जो खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं इस मैच को देखते हुए। और अच्छा लगता है जब जूनियर्स अपने सीनियर्स का मैच देख रहे हैं और चीयर अप करते हुए नजर आ रहे हो। वो भी सोच रहे होंगे कि हम भी एक दिन इसी बड़े प्लेटफॉर्म पर कुछ बड़ा परफॉर्म करके जरूर दिखाएंगे, और ऐसे ही स्क्रीन पर आएंगे। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये हर्ष, ये उल्लास, ये खुशी देखिए इन छोटे छोटे प्लेयर्स के अंदर। ये जरूर वो फील कर पा रहे होंगे कि हमें भी एक दिन बड़े प्लेटफॉर्म पर खेलना है, और यकीन मानिए ये एक दिन बड़े प्लेटफॉर्म पर जरूर खेलेंगे। And when you start playing golf in any academy, and when you start learning the basics of any game, then you think of playing the biggest
match. But this time, if you'll talk about the shot, the ball has gone only in the air and it has landed just between that deep mid wicket and long on fielder. 2 runs will come on this ball. These spectators, these fans, they are enjoying again and again. We are seeing these spectators on the big screen. 5th ball. Good shot, Dileep Tomar, but he couldn't find the gap. Will only a single. Sandeep has come. And now you are seeing these players. And I think some of these players were playing in this tournament also. So the number of spectators we are seeing in today's game are too much. पूर्वांचल के वो प्लेयर इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले मुकाबला खेल कर भी गए। लीजिए, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, थ्रो थोड़ा देरी से किया है, वो लेजीनेस वहां दिखाई फील्डर ने और उसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन को 2 रन में तब्दील कर दिया है। छोटे मोटे फैंस चीयर अप कर रहे हैं और क्रिकेट किट इनके पास है, यानी कि क्रिकेट से बड़ा ही प्यार करते हैं, समय भी दे रहे हैं। क्रिकेट एकेडमी और वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट एकेडमी इन रुड़की, फ्यूजन मैवरिक्स क्लब, टॉप क्लास एकेडमी, और उसी के ये प्लेयर्स यहाँ पर चीयर अप करते हुए नजर आ रहे हैं, सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके टी शर्ट पर आप लोगो देख पा रहे होंगे, वो फ्यूजन मैवरिक्स क्लब का वो लोगो वहां पर मौजूद है। काफी खुशी है, काफी खुश नजर भी आ रहे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि उनकी होम ग्राउंड टीम यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है इस मुकाबले में। और इनकी खुशी 4 गुनी हो जाएगी अगर ये मुकाबला क्लोज जाता है, और फिर मजा आएगा जब ये सभी के सभी दर्शक अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और जोर जोर से चीयर करेंगे। अभी भी अगर मैं आपको बताऊं तो वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड जीतेगी, उत्तराखंड जीतेगी। होम टीम उत्तराखंड के लिए सपोर्ट काफी अच्छा है। प्रवीण कुमार गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। दिलीप तोमर 11 गेंदों में 18 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छे नजर आ रहे हैं। वहीं संदीप, इनके बारे में तो क्या ही कहे। कल के दिन 2 मैचेस खेले थे टीम बिहार ने और दोनों ही मैचेस में संदीप के बल्ले से हमें अच्छी नॉक्स आती हुई नजर आई थी। पहली गेंद देखिए, प्रवीण कुमार आपको ज्यादा पेस नहीं देंगे, तो अपनी जो बाजू है ना वो थोड़ी सी खोल कर रखिए आप और ताकत लगाने के लिए तैयार रहिए। जितनी ताकत है आपकी बाजुओं में सारी झोंकनी पड़ेगी आपको अगर आप गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए देखना चाहते हैं। संदीप वो हमें देखने को मिल रहे हैं स्ट्राइक पर, लेकिन इस समय हमें देखने को मिल रहा है हमारी स्क्रीन पर ढलता हुआ सूरज। ऊपर ये गेंद हवा में खेला है उसको संदीप ने, क्या दूरी मिली है? जी बिल्कुल पूरी मिली है। 6 रन। प्रवीण कुमार इस बार थोड़ी सी ऊपर गेंद रख बैठे। संदीप की अगर आप बात करेंगे तो संदीप, उनके पास ताकत है, उनके पास काबिलियत है बड़े बड़े हिट्स लगाने के लिए। एक हाफ सेंचुरी भी कल के दिन लगाई थी। 119 के टारगेट का पीछा कर रही है टीम बिहार और हम अभी तक के एक्शन को देखने के बाद कह सकते हैं दोनों टीम्स बराबरी पर है। और एक और 6 बैक टू बैक 2 गेंदों में 2 बड़े शॉट्स और दोनों पर ही छाप लगी थी 6 रनों की। 50 पूरे टीम बिहार के। 1 more 6, बैक टू बैक 6। संदीप के बाजुओं में भी वो ताकत है कि लगातार छक्के चौके लगा सकते हैं। प्रवीण कुमार आए गेंदबाजी करने के लिए, स्पिन का जाल बिछाना चाहते थे, लेकिन संदीप ने उन्हें आड़े हाथ लिया है। पहली बॉल सिंगल, उसके बाद 2 मैक्सिमम, और अभी तो 3 बॉल का आना बाकी है। इस समय दबाव होगा गेंदबाज के ऊपर। लाइन में बदलाव, तेज गति के साथ बॉल को रिलीज किया। टप्पा खाने के बाद बहुत तेजी के साथ बल्लेबाज के पास आई बॉल। 1 रन तो दौड़कर पूरा किया, लेकिन वो लेग वाई का इशारा एम्पायर के द्वारा, बल्ले का कनेक्शन हुआ ही नहीं इस बॉल पर। इनके पास एक अलग प्रकार की क्वालिटी है। प्रवीण कुमार स्लोअर डिलीवरी भी करते हैं और स्पिन गेंदबाजी में वो तेज गति के साथ भी बॉल को रिलीज कर देते हैं, सरप्राइज करते हैं बल्लेबाज को। फिर से एक बार सागर का वो सिर्फ एक ही स्थान हमें नजर आया इस मैदान में। वो अपने डगआउट के पास खड़े होकर फील्डिंग करते हैं स्क्वायर लेग की दिशा में, और वहां से उन्होंने अच्छे खासे रन्स भी बचाए और विकेट भी निकाल कर दिए। अच्छे कैचेस भी कंप्लीट किए। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है।
क्योंकि इस समय संदीप स्ट्राइक एंड पर पहुंच गए। अब संदीप स्ट्राइक एंड पर पहुंच गए तो फील्डिंग में बदलाव आप कर लीजिए, क्योंकि वो तेज गति के साथ रन बनाना चाहते हैं। इस बार तो सिर्फ ऊंचाई है, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद नहीं। पीछे विशाल भाग तो रहे थे, लेकिन उल्टे कैचेस पकड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं। जो लॉन्ग ऑफ का फील्डर था उसको रोप से बुलाकर अपने पास ले लिया था। अगर वो बाउंड्री पर तैनात होता तो शायद ये कैच हो सकता था। एक और बाउंड्री आई इस ओवर की। अच्छे खासे रन इस ओवर से 5 के बाद 58, 2 विकेट के नुकसान पर बिहार। और ये लीजिए किस प्रकार से चीयर अप किया जा रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, झूम रहे हैं वहां पर जूनियर क्रिकेटर। गजब के दृश्य है ये, मजा ले रहे हैं सभी दर्शक इस मुकाबले का। और हर एक शख्स इस मैदान में जो मौजूद है वो अपने आप को बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहता है। ओहो, वहां थोड़ा सा वायलेंस भी हमें देखने को मिलता हुआ, ये अच्छी बात नहीं है। 5 ओवर में 58 बन गए, 5 ओवर में 61 की जरूरत है। लेकिन इन जूनियर्स को भी ये अंदाजा नहीं है कि इस समय आपकी होम ग्राउंड टीम फंस गई है अपने जाल में। ये मैच फंस गया इस समय। 5 के बाद 58, 2 विकेट के नुकसान पर 30 में चाहिए 61। और दिलीप तोमर और संदीप, ये दो बल्लेबाज ऐसे हैं, अगर ये खड़े रहे तो फिर जो आप इस समय देख रहे हैं ना, रिक्वायर्ड रन रेट 12.20, ये 8 में बदल देंगे, क्योंकि उनके पास वो एबिलिटी है, बल्लेबाजी में गहराई भी है। संदीप 6 गेंदों में 19 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और पिछले ओवर में कुछ बड़े बड़े हिट्स लगाए उन्होंने। मोहित तंवर जब ये बल्लेबाजी कर रहे थे तो ये भी बड़े बड़े शॉट्स लगा रहे थे। अब देखते हैं किस प्रकार से बचते हैं। शायद इट्स टाइम टू टेस्ट योर ओन मेडिसिन। पहली गेंद 6वें ओवर की, पहली गेंद सेकंड हाफ की, ऊपर की ये गेंद दिलीप तोमर ने उसको लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, ऑन द बाउंस गेंद को कलेक्ट करा तुषार ने। आएगा सिर्फ एक ही रन। संदीप अब स्ट्राइक पर आ गए, यानी कि अब जितने भी दर्शक मैदान के बाहर मौजूद है ना, वो सारे के सारे तैयार हो जाएं गेंद को पकड़ने के लिए, क्योंकि संदीप हवाई फायर करने में महारत हासिल करके रखी है उन्होंने। लीजिए एक बार फिर से, लेकिन इस बार दूरी ज्यादा मिली नहीं। एक बाउंस के बाद गेंद डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी के हाथ में, सिंगल ही आएगा इस पर। मोहित तंवर पहले बल्लेबाजी और अब गेंदबाजी, पहली 2 बॉल पर 2 सिंगल्स। अभी तक तो बांध के रखा है बल्लेबाजों को, लेकिन 4 बॉल का आना अभी भी बाकी है। आप 5 बॉल बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन कभी कभी अंतिम बॉल पर बाउंड्री आ जाती है। स्टेप आउट किया, फिर से वही स्क्वायर लेग, पीछे फील्डर को खोज लिया, डीप पर फील्डर तैनात था। और ये खुशी, ये हर्ष, ये उल्लास, ये जश्न देखिए, क्योंकि इस समय एक सैड बैट्समैन को आउट किया है टीम उत्तराखंड ने। मोहित तंवर के खाते में जाएगी ये विकेट। दिलीप तोमर 14 में 21 बॉल, माफी चाहेंगे 14 बॉल में 21 रन उन्होंने बनाए थे और उनकी पारी को विराम दिया है। ये बड़ी विकेट इस समय, और कहीं ना कहीं यहां से मैच थोड़ा सा पलटता हुआ भी नजर आएगा। लाइन में थोड़ा सा बदलाव, लेंथ में थोड़ा सा बदलाव किया और उसी जाल में फंसाया मोहित ने। कहते हैं ना कि आप आगाज से नहीं अंजाम से पहचाने जाते हैं। पहला मुकाबला कितना भी वन साइडेड हुआ हो, लेकिन हम अंतिम मुकाबले को ऐसे इंटरेस्टिंग मुकाबले में कन्वर्ट होते हुए देख रहे हैं। मजा आ रहा है। विकेट भी आ रहे हैं, छक्के भी आ रहे हैं, चौके भी आ रहे हैं। मोहित तंवर, उन्होंने देखिए बल्ले से रन्स भी बनाए और जब गेंदबाजी करने आए तो एक सेट बैट्समैन को फंसाया भी। लेकिन त्यागी, वो भी काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। कल के दिन हमने संदीप और त्यागी के बीच में एक बढ़िया साझेदारी होती हुई देखी थी। चौथी गेंद स्टंप लाइन पर, ये गेंद राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं मोहित तंवर, और अभी तक उनकी ये स्ट्रेटजी उनके काम आई है। बिहार अगर मैच जीतना चाहती है तो फिर संदीप का खड़ा रहना सबसे ज्यादा जरूरी। अगर संदीप खड़े रहेंगे तो फिर इस मैच को सिंगल हैंडेड खत्म कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो उनकी जरूरत पड़ेगी नहीं। त्यागी ने कहा है कि अभी हम भी विकेट के ऊपर मौजूद हैं, सिर्फ दूसरी बॉल फेस की है, और वो कॉन्फिडेंस देखिए। मैक्सिमम के लिए मोहित तंवर 8 रन अभी तक दे चुके इस ओवर से, 1 विकेट उनके नाम, और इस बार भी उठा के खेला है। लेकिन जो फील्डर है वो कमाल की फील्डिंग करते हुए नजर आएंगे। विशाल सैनी बतौर गेंदबाज आप इन्हें देखते हैं, लेकिन आप यहां फील्डिंग करते हुए भी देख लीजिए। पहले बहुत लंबा ग्राउंड कवर किया और उसके बाद डाइव लगाई, रन्स बचाए, बाउंड्री सेव की।
और जब आप इस प्रकार से प्रयास करें तो समझिए इस समय उत्तराखंड को सिर्फ और सिर्फ जीत दिखाई दे रही है, और वो जीत चाहिए आपको एट एनी कॉस्ट। 6 के बाद 68, 3 विकेट के नुकसान पर। देखिए सूरज ढल रहा है, रोमांच बढ़ रहा है। अंतिम 24 गेंदें, 51 रनों की जरूरत। रोहित लगातार 2 मैचेस में 2 प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। ये अगर आज गेंदबाजी अच्छी करते हैं तभी अवार्ड मिलेगा, क्योंकि इनके बल्ले से रन्स नहीं निकले थे पहली पारी में। 24 गेंदों में 51 की जरूरत। पहली गेंद संदीप के लिए, हवा में खेला है उस गेंद को संदीप ने, खिलाड़ी वहां मौजूद और आ जाएगा विकेट। इसी के साथ एक बहुत बड़ा विकेट गंवाया है टीम बिहार ने, और ये खिलाड़ी ये जूनियर खिलाड़ी निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न है अपनी सीनियर टीम के प्रदर्शन को देखने के बाद। छोटी गेंद थी ये। रोहित वो कह रहे हैं कि मैं लगातार तीसरा प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड लेकर जाऊंगा गेंदबाजी से इस बार। देखिए ये कैच नहीं पकड़ा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैच पकड़ लिया इस समय टीम उत्तराखंड ने, क्योंकि संदीप एक ऐसे बल्लेबाज थे अगर वो खड़े रहते तो फिर मैच को खत्म कर देते, लेकिन इस समय उनका विकेट निकाल लिया। और रोहित की ये एक विकेट, मैं तो कहता हूं प्लेयर ऑफ द मैच इन्हें दे दीजिए, क्योंकि ये एक विकेट ना मेरे हिसाब से 2 या 3 विकेट के बराबर है, क्योंकि उस बल्लेबाज के पास बहुत ज्यादा स्किल्स, बल्लेबाजी में गहराई रखते हैं, अलग अलग तरह के क्रिकेटिंग स्ट्रोक भी लगाते हैं, और उस बल्लेबाज को आउट करना आते ही वो किसी भी गेंदबाज के लिए आसान नहीं रहता, और वो काम करके दिखाया टीम के वाइस कैप्टन रोहित कुमार ने। आज वो बल्ले से ज्यादा कुछ कर नहीं पाए इस मुकाबले में, लेकिन बॉल से कुछ बड़ा करके दिखाया है। फिलहाल तो यहां पर बड़ा स्ट्रोक लगा के दिखा दिया है। चैंकी चीयर अप कीजिए, पहली बॉल पर मैक्सिमम, हल्का सा वो स्वीप मिड विकेट की दिशा में, माफी चाहेंगे 6 रन बटोर लिए उन्होंने। चौकों में कम और छक्कों में ज्यादा डील हो रही है इस मुकाबले में, लेकिन अभी भी 45 रन की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। 22 बॉल्स में ये मुकाबला अभी बचा हुआ है, इस मुकाबले में जान अभी बाकी है, ट्विस्ट का आना अभी भी बाकी है। क्लाइमैक्स अपनी चरम सीमा पर जरूर जाएगा, क्योंकि ये टीम बिहार है, आसानी से हार नहीं मानती। इसके पास भी बल्लेबाजों की भरमार है, काफी बल्लेबाज गहराई रखते हैं अपनी बल्लेबाजी में। वो जब चाहें, जहां चाहें, जिस बॉलर पर चाहें वहां पर स्ट्रोक लगाकर मैक्सिमम हासिल कर सकते हैं। पिछली बॉल पर भी हमने देखा, पहली बॉल खेल रहे थे चैंकी मैक्सिमम, इस बार बॉल सिर्फ और सिर्फ हवा में, पीछे फील्डर लॉन्ग ऑन का फील्डर मौजूद, लेकिन यह कैच ड्रॉप हुआ है। पिछला जब कैच पकड़ा था तो हमने कहा था कि यह कैच नहीं मैच पकड़ा है, लेकिन मैं यहां कह सकता हूं कि अगर हो सकता है ये कैच नहीं, आपने मैच भी ड्रॉप कर दिया इस समय, क्योंकि चैंकी आते ही काउंटर अटैक कर रहे हैं, और उनकी ये सोच अच्छी साबित हो सकती है टीम बिहार के लिए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, इस बार फिर से गेंद हवा में, लेकिन इस बार प्रवीण कुमार नहीं छोड़ेंगे, जाना पड़ेगा वापस एक और बिहार के बल्लेबाज को। त्यागी ने बनाए 4 गेंद में 8, रोहित ने ले लिया है दूसरा ही विकेट, और दूसरा विकेट एक ही ओवर में आया है वो, तो अभी भी रोहित के पास 8 गेंदें हैं, और अगर उन 8 गेंदों में 2 विकेट और ले लेते हैं तो तीसरा लगातार प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीतने के प्रबल दावेदार बन जाएंगे। मुझे लगता है अगर तीसरा विकेट निकाल लेंगे तो फिर वहां पर ही वो दावेदारी पेश करेंगे, क्योंकि बल्लेबाजों ने ज्यादा रन बनाए नहीं है। रोहित एकमात्र ऐसे गेंदबाज होंगे जिनके खाते में 3 सफलता भी जाएंगी। देखिए रोहित जब करते हैं ना, बड़ा ही करते हैं, चाहे हम बतौर बैट्समैन बात करें या फिर बतौर बॉलर। जब बल्ला इनका चलता है तो फिर अच्छे खासे रन्स बनाते हैं, और आज तो इनकी गेंदबाजी कमाल कर रही है। एक ऐसे मैच में ऐसे समय पर विकेट निकाली है जहां पर मैच फंस गया था, ब्रह्मास्त्र के तौर पर यूज किया है कप्तान चिराग त्यागी ने अपने वाइस कैप्टन का, और ब्रह्मास्त्र कभी खाली नहीं जाता, और रोहित ने वो कार्य करके दिखाया। 2 विकेट और तीसरा विकेट तकरीबन ऐसा लगा था कि शायद आने ही वाला है। शुभम चौधरी के पास से निकली वो बॉल, लेकिन फिलहाल तो सीमा रेखा को भी क्रॉस कर चुकी है। 4 रन आए, 19 में 40। आसान नहीं रहेगा किसी भी टीम के लिए, लेकिन थोड़ी सी अच्छी खबर यह है कि टीम उत्तराखंड इस मुकाबले में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 5 बल्लेबाज वापस जा चुके हैं। अंकुर सारस्वत
बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन आते ही वो स्ट्रोक लगाना हर बल्लेबाज के लिए आसान नहीं रहता। चैंकी ने तो वो करके दिखाया, पहली बॉल मैक्सिमम के लिए भेज दी थी। सारस्वत, उन्होंने भी दिखाया है कि वो बल्लेबाजी कर सकते हैं और लगातार 2 गेंदों में 2 चौके लगा सकते हैं। चैंकी ने शुरुआत करी थी एक मैक्सिमम के साथ अपनी पारी की, सारस्वत ने शुरुआत करी है अपनी पारी के एक चौके के साथ, और उसके बाद एक फॉलो अप बाउंड्री भी देखने को मिलती हुई हमें उनकी तरफ से। टीम बिहार के बल्लेबाजों की एक काफी ज्यादा अद्भुत चीज हमें देखने को मिली है कि आते हैं और आते ही बड़े शॉट्स लगाना शुरू कर देते हैं। 2 विकेट जरूर आए हैं रोहित के ओवर में, लेकिन आप देखिए 15 रन्स भी बटोरे टीम बिहार के बल्लेबाजों ने, और रन्स काफी इंपॉर्टेंट है बचाना टीम उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से। देखिए तकरीबन 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से इनका करंट रन रेट दिखाई दे रहा है, और सटीक 12 रन प्रति ओवर चाहिए। तो उसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी है टीम बिहार को, जिस अंदाज में इन्होंने पिछले तकरीबन 7 ओवर में बल्लेबाजी की है। सिर्फ आपको 3 ओवर और संयम दिखाना है, वही लय पकड़नी है जिस लय में आपने बल्लेबाजी की है। और यहां पर अब देखिए थोड़ा सा चिंता का विषय, वो चिंतित नजर आ रहे हैं, डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हैं टीम के कैप्टन चिराग त्यागी के किसके साथ जाएं, किस गेंदबाज को कब लगाना सबसे ज्यादा जरूरी। फिलहाल तो बॉल हमें नजर आ रही है सैनी के हाथों में, लेकिन साथ में पीके भी वहां पर खड़े हुए हैं एम्पायर से गुफ्तगू करते हुए। वो टाइम को लेकर जरूर वहां पर बात हो रही होगी कि जो भी करना है आप जल्दी कीजिए, आप टाइम बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज्यादा समय बचा नहीं है। बैड लाइट्स के चलते इस मैच को रोका भी जा सकता है अगर ये मैच पूरा नहीं हुआ तो, और पेनल्टी भी लगाई जा सकती है टीम के ऊपर अगर आप समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो। हर एक टीम को समझना चाहिए कि अपने ओवर्स को ना वो टाइम के अंदर ही खत्म करने की कोशिश करें। देखिए जब अनाज गिरता है ना तो मुर्गी खुश होती है और किसान दुखी। तो यहां पर अगर समय बर्बाद हो रहा है तो एक टीम खुश हो रही होगी और एक टीम दुखी, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाएगा तब तो फिर खेल ही नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत अंधेरा होगा, ऐसा लगेगा अंपायर को कि हाँ गेंद दिखाई दे रही होगी बल्लेबाज को, खेल चलाया जाएगा। लेकिन बिहार के बल्लेबाज बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो अंधेरे में बल्लेबाजी करें। वैसे अभी अच्छा खासा समय बाकी है, लेकिन फिर भी उत्तराखंड के खिलाड़ियों को थोड़ी सी जल्दबाजी दिखानी चाहिए, और जल्दबाजी वहां पर बिहार के खिलाड़ियों को भी दिखानी है। पहली गेंद बहुत ही शानदार, विशाल के सैनी वो 8वां ओवर करने आए हैं। हमने इनको 9वां ओवर करते हुए देखा है, हमने इनको 10वां ओवर करते हुए देखा है, आज 8वां ओवर करने आए। चिराग त्यागी की एक अच्छी रणनीति कह सकते हैं इसको हम शायद, मोनू। और मुझे लगता है कि वो सही फैसला वहां पर कप्तान चिराग त्यागी का, कि अपने स्टार गेंदबाज को ना आप थोड़ा सा पहले लेकर आए, क्योंकि इस समय 36 रन की आवश्यकता है। अगर ये ओवर अच्छा चला जाएगा ना तो बाकी के 2 ओवर्स में प्रेशर में आ जाएगी टीम बिहार। लेकिन यहां पर कवर्स के ऊपर से 4 रन बटोरे, थोड़ा सा मोमेंटम मिलेगा बल्लेबाज को। चैंकी के पास भी गहराई है, ये उन्होंने प्रूव कर दिया। 4 में 11 ऑलरेडी लगा दिए, 16 में 32 चाहिए, वो लगातार 12 रन प्रति ओवर आपको चाहिए। और 12 रन प्रति ओवर बनाना इतना मुश्किल नहीं है किसी बल्लेबाज के लिए। T10 फॉर्मेट में हमने अक्सर देखा है कि हर टीम मेंटेन कर लेती है 12 रन 13 रन प्रति ओवर, लेकिन ये एक बड़ी मिस्टेक का वहां पे बल्लेबाज से हुई है। क्या बॉल टच होकर गई है। डीआरएस की मांग की गई है, क्योंकि वहां बल्लेबाज श्योर है कि मेरे साथ कोई कनेक्शन नहीं हुआ है। वो तीसरे एम्पायर उसे चेक करके बताएंगे फेयर डिलीवरी या फिर वाइड डिलीवरी। आइए चलते हैं तीसरे एम्पायर के पास। धीरे धीरे ये मुकाबला हमें अब रुख मोड़ता हुआ नजर आ रहा है, एक नया रुख इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है।
2 और गेंदें बाकी हैं विशाल के ओवर की। चौथे गेंदों में 27 रनों की जरूरत। 9 रन बना लिए हैं विशाल के ओवर में। 2 में अगर 3-4 रन और बना लेते हैं मेरे हिसाब से बिहार के बल्लेबाजों को खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि विशाल एक ऐसे गेंदबाज है जो 7 या 8 रन देने में भी काफी कंजूसी करते हैं। एक बहुत ही तेज तर्रार गेंद, जगह बनाकर शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे। वैसे शफल किया था, थोड़ा सा ऑफसाइड की तरफ आए थे, फिर ऐसा लगा जैसे शायद पीछे जाना चाहते हैं, लेकिन पीछे धकेला था विशाल ने। तेज गति की गेंद थी ये। एकमात्र गेंदबाज विशाल के सैनी जो इस मैच के परिणाम को थोड़ा सा बदल सकते हैं। 13 में 26 अभी भी चाहिए। वो 12 रन प्रति ओवर वो आपको हमेशा देखने को मिलेगा। करारा प्रहार। पीछे फील्डर है लेकिन नहीं, वहां फील्डर मौजूद नहीं है। कबर्ड्स के ऊपर से खूबसूरत अंदाज में बाउंड्री बटोरी है। इस ओवर की अंतिम बॉल थी और अंतिम बॉल पर विदाई दी है विशाल सैनी को बाउंड्री के साथ। 8 में 97। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्लाइमैक्स अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि यहां से 12 में 22 चाहिए मैच को जीतने के लिए। 12 गेंदों में 22 की जरूरत। चैंकी और अंकुर दोनों ही बल्लेबाज क्षमता रखते हैं बड़े बड़े हिट्स लगाने की। चिराग त्यागी का एक निर्णय कहीं ऐसा ना हो उनको इस मुकाबले से दूर धकेल दे। विशाल के सैनी को 8वां ओवर दिया और वो थोड़ा सा चौंकाने वाला निर्णय था, क्योंकि 9वें और 10वें ओवर में आप चाहते हैं कि आपका सबसे ज्यादा अच्छा गेंदबाज गेंदबाजी करे, और मेरे हिसाब से उत्तराखंड की टीम के सबसे अच्छे गेंदबाज अभी तक रहे हैं विशाल के सैनी। उनके पास पेस है, उनके पास वेरिएशन है, उनके पास विविधता है, उनके पास मिश्रण है। उन्होंने हर एक चीज का इस्तेमाल करा है और प्रवीण कुमार की इस पहली गेंद को हवा में खेला। कनेक्शन सही रहा नहीं। कितने रन? तुषार वहां पर मौजूद। क्या 2 रन कंप्लीट किए गए हैं? जी बिल्कुल। और अब सिर्फ 20 रनों की जरूरत टीम बिहार को। गेंदें बची हुई हैं 11। अब एक सवाल यह भी रहता है कि पारी का अंतिम ओवर कौन करने आएगा। क्या वहां पर स्पिन गेंदबाजी करने के लिए चिराग खुद आएंगे या फिर वहां रोहित को लगाया जाएगा, क्योंकि चिराग के पास भी 1 ओवर बचा हुआ है, रोहित के पास भी 1 ओवर बचा हुआ है। अब यहां पर सबसे मुश्किल घड़ी है सिर्फ ऊंचाई, दूरी नहीं। ओ कमाल का स्ट्रोक, पावर जनरेट की इसमें। एक समय लगा था कि बॉल ऊपर खड़ी हो गई है, लेकिन एक लंबा छक्का देखने को मिला है। चैंकी, व्हाट ए मैन, कहां से पावर जनरेट करते हो भाई। सुपर, आउटस्टैंडिंग, फैंटास्टिक। थोड़ी देर पहले जो बच्चे हमें हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, नाचते हुए नजर आ रहे थे, अब उनके चेहरे पर आपको एक मायूसी नजर आएगी, क्योंकि टीम उत्तराखंड इस समय खराब परिस्थितियों से जूझ रही है। 9 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। डॉट बॉल आई है। एक बार फिर से हमें वो शोर सुनाई दिया है उन बच्चों की तरफ से। उत्तराखंड की टीम के लिए सपोर्ट काफी अच्छा देखने को मिला है आज हमें। 9 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। चौथी गेंद प्रवीण कुमार के इस ओवर के आगे निकले बल्लेबाज। काफी ज्यादा स्लो रखी गेंद प्रवीण कुमार ने और ये गेंद भेज दी गई है 6 रनों के लिए। विशाल के सैनी नहीं रोक पाए इस गेंद को और ऐसा लग रहा है कि अब यहां से ये मुकाबला टीम बिहार के पक्ष में चला गया है। 8 गेंदों में सिर्फ 8 रनों की जरूरत। तारीफ करनी होगी इस समय बिहार की। स्ट्रगल कर रही थी, लड़खड़ा रही थी, लेकिन हार नहीं मानी। विकेट भी गवाई। चैंकी, इनको हमने थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन इन्होंने बताया कि हमारे पास भी वो स्ट्रोक्स हैं, वो पावर है, वो सिंगल हैंडेड मैच को फिनिश कर सकते हैं। रन चुराया। देखिए वो मैक्सिमम के साथ साथ सिंगल डबल्स को भी उतना ही तवज्जो दे रहे हैं जितना देना चाहिए। और इनका खेमा अब थोड़ा सा खुश होता हुआ नजर आ रहा है। वो खुशी की लहर नजर आ रही है। वो समझ रहे हैं कि अब मैच ज्यादा दूर है नहीं हमसे। अंकुर सारस्वत का तो सिर्फ एक ही दायित्व तो बनता है कि आप सिंगल डबल निकालिए, स्ट्राइक रोटेट कीजिए और रन जोड़िए। वो डॉट डिलीवरी नहीं आनी चाहिए। ओवर की समाप्ति 9 के बाद 113, 5 विकेट के नुकसान पर 6 बॉल बची हुई है। सिर्फ 6 रन की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। क्लाइमैक्स एक बार फिर से अपनी चरम सीमा पर। देखिए इससे पहले हम देख चुके हैं कि एक गेंदबाज 4 रन डिफेंड करता हुआ नजर आया था हमें।
एक सुपर ओवर भी देख चुके हैं हम इस सीनियर T10 चैंपियनशिप 2024 में। क्या दूसरा सुपर ओवर हम देख सकते हैं? मोहित तंवर गेंदबाजी करने आए, अंकुर सारस्वत स्ट्राइक पर। लेकिन मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूं, नो कैप्टन चिराग, नो वाइस कैप्टन रोहित, स्टिल मोहित अपना दूसरा ओवर लेकर आए। पहली बॉल कोई हवाई यात्रा पर भेज दिया है, विनिंग स्ट्रोक मैक्सिमम के साथ इस मैच को अपने पक्ष में रखा है। कमाल की बल्लेबाजी, अंकुर सारस्वत ने वो लगाया स्ट्रोक और वो विजयी स्ट्रोक लगाकर बता दिया है कि टीम बिहार इस टूर्नामेंट में, इस सीनियर T10 चैंपियनशिप 2024 में एक मजबूत टीम थी, मजबूत टीम है और मजबूती के साथ आगे भी खेलती रहेगी। 5 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम किया है। मुश्किलों से क्या है डरना, हर मुश्किल पर वार करो, तूफानों की क्या है जरूरत, तैर कर दरिया पार करो। अरे आग का दरिया है और डूब कर जाना है। क्या गजब का खेल खेला है टीम बिहार के खिलाड़ियों ने। एक समय पर असंभव सा लग रहा था ये चेज, लेकिन अंजाम दिया उसको अंकुर सारस्वत और चैंकी ने। गजब की बल्लेबाजी। एक समय लगा था कि टीम फंस गई है, लेकिन हार नहीं मानी और वो कहते हैं ना कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। और बिहार ने बताया है किस प्रकार से वक्त बदला जाता है, क्या आपको करने की आवश्यकता है। हार नहीं मानी, विकेट गंवाए थे, कंसिस्टेंसी दिखाई, लगातार लड़ते रहे, अंतिम ओवर में लेके गए। 5 बॉल बची हुई थी और इस मुकाबले को अपने पक्ष में रखा है। टीम उत्तराखंड, होम ग्राउंड टीम, इस मुकाबले में हार गई है। पहला मुकाबला जरूर हारी थी, उसके बाद बीच में 3 मुकाबले जीती और लीग स्टेज का यह आखिरी मुकाबला, और इस मुकाबले में भी वो हार का सामना करती हुई नजर आई है। वेल प्ले टीम बिहार। वो जश्न, वो हर्ष, वो उल्लास, वो सेलिब्रेशन देखिए किस प्रकार से वहां पर चीयरअप करते हुए नजर आ रहे हैं, और करना भी चाहिए। और बिहार की तरफ से किस प्रकार से बल्लेबाजी की। विकास कुमार 2 बॉल में 4 रन, 1 चौका लगाया था। बबलू 9 बॉल में 12 रन, 2 चौके लगाए। दिलीप तोमर 15 में 21, 2 चौके और 1 छक्के उन्होंने भी लगाए थे। संदीप 8 में 20, 1 चौका और 2 छक्का। त्यागी 8 रन बनाए, 4 बॉल का सामना किया था जिसमें 1 छक्का लगाया था। नॉट आउट रहे चैंकी, चंद्रमोहन, इनका नाम आप नोट कर लीजिए। 12 में लगाए 31, 2 चौके और 3 छक्के। अंकुर सारस्वत कमाल के बल्लेबाज, 5 बॉल में 19 बनाए, 3 चौके और 1 छक्का लगाया और वो विनिंग शॉट था। मैक्सिमम के साथ लगाकर इस पारी को विराम दिया। और आइए अब नजर डालते हैं बॉलिंग स्कोर कार्ड के ऊपर। विशाल के सैनी 2 ओवर 23 रन 1 विकेट। मुकुल त्यागी 2 ओवर 16 रन 1 विकेट। चिराग त्यागी 1 ओवर 12 रन कोई विकेट नहीं। प्रवीण कुमार 2 ओवर 34 रन कोई सफलता नहीं। मोहित तंवर 1 ओवर का स्पेल 16 रन 1 विकेट। रोहित 1 ओवर 15 रन 2 विकेट अपने नाम की थी। फॉलो विकेट्स पर भी नजर डालेंगे। पहला विकेट गवाया 4 रन के स्कोर पर। दूसरा झटका जल्दी से लगा, 33 रन पर ही गवा दिया था। तीसरा विकेट 60, चौथा विकेट गवाया था 68 और 5वां विकेट गवाया था 75 रन के स्कोर पर। उसके बाद कोई विकेट नहीं गवाया और इस मैच को अपने नाम किया है। गवाया है तो सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड ने अपना मैच। और चलिए वक्त हो गया है मैच समरी का। मोहित तंवर 17 में 31, विजय ने बनाए 6 में 16 और राकेश ने बनाए 15। और बिहार की तरफ से बात करें तो फिर चैंकी ने बनाए 31, दिलीप ने 21, संदीप ने 20। गेंदबाजी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज संदीप 2 ओवर 31, भरत शर्मा 2 में 24, रवि ने 2 ओवर में 8 रन खर्च करके 1 विकेट ली। रोहित ने 1 ओवर 15 रन 2 विकेट। विशाल के सैनी 2 ओवर 23 रन 1 विकेट। मुकुल त्यागी 2 ओवर 16 रन 1 विकेट। कुछ इस प्रकार से रहा है ये लेखा जोखा। लेकिन फिलहाल हमारे साथी कमेंटेटर अमन एकदम से तैयार है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए। आइए चलते उनके पास, थोड़ी देर बाद शुरू की जाएगी प्राइज सेरेमनी। What a game, what a finish and what a run chase. Bihar got one more victory in this Senior T10 Cricket Championship 2024, and what a way to conclude the day 4 of this Senior T10 Cricket Championship 2024. Welcome to the post-match presentation, and with me in this post-match presentation I have Mr. Vijay Pal Tyagi ji, Senior T10 Cricket Association
and he is the General Secretary of Uttarakhand T10 Cricket Association and the observer of T10 Cricket Association, Mr. Shwetansh Dhar is also with us. And the player of the match award goes to Sandeep. Please give a big hand to Sandeep. A great knock. Team Bihar, they were chasing 119 and a successful chase before 5 balls. Sandeep, please. बहुत ही शानदार तरीके से आपकी टीम ने ये मुकाबला जीता, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी फाइट हुई इस मैच में और एंड तक खेला हमने मैच ये और काफ़ी अच्छा जब हम जीते तो काफ़ी अच्छी खुशी हुई। और मैं चाहता हूँ बोलना चाहता हूँ अंकुर के लिए और चिंकी के लिए जिन्होंने अच्छी बैटिंग करी तो इसके अकॉर्डिंग ये अवार्ड भी मेरे को मिला। तो मैं अंकुर और चिंकी का थैंक यू बोलना चाहता हूँ, अपने बॉलर्स का थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने अच्छी बॉल डाली। एक समय पर ऐसा लग रहा था कि आप ही मैच को समाप्त कर देंगे, लेकिन फिर आपका विकेट आ गया, दिल की धड़कनें बढ़ी होंगी। जी हाँ, मैं शांत बैठा हुआ था, मेरा विकेट हो गया तो मैं कुर्सी पे शांत बैठा हुआ था। मैंने सोचा पता नहीं क्या होगा, मेरे को 50-50 लग रहा था क्योंकि लेकिन बैट्समैनों ने हमारे लिए इतना अच्छा इंप्रूव करा, गेम को आगे लेकर गए और एंड में अच्छा फिनिश करा। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर गेम्स। थैंक यू सो मच। So that's it from the post-match presentation, and you don't need to miss any action, and you can't miss any action because with each passing day we are seeing that the excitement is increasing. So don't forget to join us on the day number 5 of Senior T10 Cricket Championship 2024. Thank you so much.